So this is our third demo lecture, and after this there will be one more lecture, particularly from your chemistry part. And after that, those who will join the lectures, they will be allotted to our classes. Now in this lecture, we will see the remaining part of your blood. We have already completed our one chapter from anatomy physiology, which is known as a blood. So plasma and its composition. 70 to 78% will be plasma will be there in your blood, and remaining part will be your blood cells. So plasma में क्या क्या होता है? What are the composition of plasma? What is the composition of plasma? So plasma will have your water as a major part. 90 to 93% in the plasma there will be water. प्लाज्मा में 90 to 93% क्या होगा आपका? वाटर होगा. 7 to 8% आपका सॉलिड पार्ट होगा. जो सॉलिड पार्ट है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, उसमें इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है. और बाकी का जो रहेगा वो गैसेस रहेगा. सो योर प्लाज्मा blood plasma consists of three parts. First one is a solid part, which is around 7 to 8%. Then next one is your water, which is a major part, 90 to 93%, and then remaining part is your gases. Okay, so from solid part itself, solid is divided into two types, organic and inorganic. तो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है सॉलिड का प्लाज्मा में, वो क्या क्या होता है? प्लाज्मा में आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. प्लाज्मा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, देन अमीनो एसिड, फैट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. सो प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं प्लाज्मा में? सो योर प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक albumin, globulin, fibrinogen, etc. So these will be a plasma proteins. Again, this albumin, globulin, fibrinogen will be discussed separately again. Okay, then your plasma also consists of amino acids, which may be either essential, non-essential, or semi-essential. So that is another part. Then your plasma will have carbohydrate like glucose. Okay, your plasma will also have fats like phospholipids, cholesterol, triglycerides. Your plasma will also have hormones secreted by various glands. Okay, then your plasma will also have different kind of enzymes. They say amylase. Amylase will break down your carbohydrates. Then carbonic anhydrase. So this enzyme is very important because there are certain drugs which are carbonic anhydrase inhibitor, used as a diuretic as well as used in the ocular glaucoma. जो आपका काच बिंदु होता है या मोतिया बिंदु होता है, उसमें भी कार्बनिक अनहाइड्रेस नाम के ड्रग्स यूज करते हैं, अनहाइड्रेस इनहिबिटर नाम के ड्रग यूज करते हैं. और कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर डाययूरेटिक्स भी होते हैं. सो दीज एंजाइम्स विल बी प्रेजेंट लाइक amylase, which will break down your glucose. Your amylase means will break down your carbohydrates. Then carbonic anhydrase, acid phosphatase enzyme will be there. Alkaline phosphatase, lipase will break down your lipids. Esterase, proteases will break down your protein, transaminase. So these kind of enzymes will be available in the plasma. Okay, so these are the organic components. Now again, in plasma will be non-proteinous nitrogenous substances. For example, ammonia, creatinine, xanthine, hypoxanthine, urea, and uric acid. So most of them are excretory product. Okay, so they are the metabolic waste of your tissue or your body. जैसे क्रिएटिनिन हो गया आपका, xanthine, ये यूरिया हो गया, यूरिक एसिड. सो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट. अमोनिया होगा. सो दीज विल बी रिमूव्ड in the form of urine after the filtration of your blood. ठीक है. So these will be organic components or organic solid present in the your plasma. So that's why your plasma has a colloidal nature. Plasma is not a clear liquid. So it is having turbidity, or it is a little bit having solid content. So that's why. So these will be an organic component. Inorganic component will be like this: sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, phosphate, iron and copper, iodine वगैरह. सो ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर इनऑर्गेनिक आयंस होंगे. जैसे सोडियम होता है आपका, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट. सो मोस्ट सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो इसमें का ये जो आयंस होते हैं, इसमें भी डिवाइड किया जाता है कैटेगरी वाइज. सो विच इज अ मेजर, which is a minor, which is intracellular, which are extracellular. For example, sodium, okay, sodium and calcium, these are the extracellular cations. Okay, sodium, calcium, extracellular cations. Potassium is a intracellular cation. जैसे क्लोराइड होता है, क्लोराइड इज इंट्रासेलुलर एनाइन, एंड बाइकार्बोनेट इज अ एक्स्ट्रासेलुलर एनाइन. लाइकवाइज दैट. सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसकी भी कैटेगरी होती है बाद में. और गैसेस क्या होते हैं आपके? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. सो दिस विल बी योर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. ये कंपोजिशन होगा प्लाज्मा का. प्लाज्मा में ये सब ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होगा. ठीक है, आपके गैसेस भी होंगे. पीएच वैल्यूज ऑफ फ्लूइड्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। सो गैस्ट्रिक जूस, आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच कितना होना चाहिए। व्हाट इज पीएच। पीएच इज नथिंग बट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो पीएच में आपका पीएच स्केल होता है 1 टू जो भी है 14 तक जो होता है आपका पीएच स्केल, तो उसमें जो हर एक का पीएच होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो देर आर बॉडी फ्लूइड, सो टू मेंटेन हीमोस्टैसिस, हर एक बॉडी फ्लूइड का एक पीएच है फिक्स होता है, उसी रेंज में होना चाहिए उसका। जैसे आपका ब्लड का पीएच होता है 7.4, तो उसका पीएच उतना ही होना चाहिए। अगर पीएच कम हो गया तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक अल्कलोसिस, अगर पीएच ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक अल्कलोसिस। पीएच कम हो गया, अगर पीएच कम हो गया बॉडी का, या फिर ब्लड का पीएच लेस देन 7 हो गया तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक एसिडोसिस। अगर ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक अल्कलोसिस। सो एवरीथिंग शुड बी इन अ नॉर्मल रेंज। सो पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो गैस्ट्रिक एसिड का पीएच जो है आपका, गैस्ट्रिक जूस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके स्टमक में, तो उसका पीएच होता है 1.2 टू 3। आप बोलेंगे सर ये रेंज में क्यों है, ठीक है। जब आप खाना नहीं खाते हो, जब आपका पेट एम्प्टी होता है, एम्प्टी स्टमक, so at that time your pH will be around 1.2, so which is a 1 normal HCl, 0.1 normal HCl, 0.1 normal HCl का जो pH होता है 1.2, तो उसका आपके स्टमक में भी 1.2 pH का ही एसिड होता है। अगर आपने खाना खा लिया तो उसका pH होगा 3, depending upon the food in the stomach. If there is a absence of food, so at that time your pH will be around 1.2, and if your stomach has a food in the stomach, then it will around 3. देन लेमन जूस, लाइक नॉर्मल लेमन, आप जो लेमन खाते हो या फिर लेमन खाने में खाते हो, उसका जो पीएच है लेमन जूस का 2.3 होता है। विनेगर होता है उसका 3 होता है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे आप सोडा पीते हो, ठीक है, जैसे आप कोका कोला वगैरह जो ड्रिंक्स कार्बोनेटेड होते हैं, जिसमें आप जो होता है ड्रिंक्स जैसा आप थम्स अप वगैरह जो जो भी कार्बोनेटेड बेवरेज है, तो उसका पीएच होता है अराउंड 3 टू 3.5, ठीक है। ऑरेंज जूस का होता है 3.5। देन वजाइना में जो फ्लूइड होता है वजाइनल फ्लूइड, सो उसका पीएच होता है 3.5 टू 4.5। इट इज इंपॉर्टेंट, वजाइनल पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it is one of the most important consideration while designing a vaginal dosage forms. So if you want to design any kind of vaginal tablet or any kind of vaginal suppository, that dosage form should not disturb the vaginal pH. अगर इसका pH चेंज होगा, इसके रेंज के बाहर होगा vaginal का pH, तो वहाँ पे इरिटेशन होगा आपको। सो टोमेटो जूस का pH होता है 4.2। cerebrospinal fluid, so the fluid present in your spine, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अराउंड जो फ्लूइड होता है, तो दैट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसका भी पीएच नॉर्मल होना चाहिए, 7.4 इज नॉर्मल पीएच, ठीक है। सो उसका पीएच नॉर्मल होना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ पीएच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीएच जो है आपका होना चाहिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। गैस्ट्रिक एसिड का पीएच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका वेजाइनल का पीएच आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सीएसएफ का याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। सो एज द पैंक्रिया विल सिक्रेट अ पैंक्रियाटिक जूस, उसका पीएच जो होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। सो 7.1 टू 8.2, दैट इज अ पीएच ऑफ योर पैंक्रिया, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका गॉल ब्लैडर, उसके बाद में आता है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में आता है आपका बाइल जूस और बाइल, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। सो एक्चुअली बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। लिवर में बाइल का सिंथेसिस होता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो उसका पीएच होता है आपका 7.6 टू 8.6। सो दिस पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है उसके। सो कॉफी का, जो आप कॉफी पीते हो उसका पीएच होता है अराउंड 5, ठीक है, कॉफी का। उसके बाद यूरिन का पीएच जो होता है वो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यूरिन का पीएच होता है आपका 4.6 टू 8। आप बोलेंगे सर 4.6 मतलब टुवर्ड्स द एसिडिक साइड, 8 मतलब टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड। अगर आपकी यूरिन में ज्यादा अमोनिया हो गया तो दैट विल इंक्रीज योर पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है। 8 मतलब यहाँ पे अमोनिया होगा जहाँ। देन सलाइवा विल हैव पीएच ऑफ 6.35 6.85, इसी रेंज में आपका सलाइवा का पीएच होगा। आपके मिल्क जो पीते हैं, आप मिल्क जो यूज करते हैं उसका पीएच है 6.8। उसके बाद में डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर, उसका पीएच होता है आपका 7। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7, डिस्टिल वाटर का पीएच 7। देन उसका ब्लड का पीएच जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ब्लड का पीएच कितना होता है आपका 7.35 टू, ठीक है, 7.35 टू 7.45, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45। देन आपका जो सीमन होता है, जैसे जैसे वजनल फ्लूइड होता है वैसे ही सीमन होता है मेल्स में। सीमन में जितना पीएच है 7.20 टू 7.60। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसका पीएच होता है 10.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच होता है 14। उसके बाद और एक बॉडी फ्लूइड है आपका, दैट इज नोन एज अ टीयर्स। टीयर्स टीयर्स का कितना होना चाहिए पीएच आपका 6.5
टीएस का होना चाहिए आपका पीएच 6.5 टू 7.6। बॉडी फ्लूइड्स पीएच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी वो पूछ लेगा व्हाट इज द पीएच ऑफ योर गैस्ट्रिक स्टमक और गैस्ट्रिक जूस, व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो आपको आना चाहिए कि 1.2 टू 3। तो वैसा हर एक बॉडी फ्लूइड का पीएच इंपॉर्टेंट है। gastric acid is important 1.2 to 3, then your vaginal fluid like 3.5 to 4.5, then CSF 7.4, pancreatic juice 7.1 to 8.2, gallbladder or bile 7.6 to 8.6, then आपका सलाइवा का pH कितना होना चाहिए, सलाइवा का होना चाहिए 6.35 to 6.85, यूरिन का कितना होना चाहिए 4.6 to 8, ठीक है। डिस्टिल वाटर का आता है 7, एग्जैक्टली 7 0, ओके। 7 मतलब एग्जैक्टली न्यूट्रल। 7 के नीचे अगर होगा पीएच तो उसको बोलेंगे लिटिल बिट एसिडिक, और 7 के ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे अल्कलाइन। ब्लड का पीएच होना चाहिए आपका 7.35 टू 7.45, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड बहुत बार पूछा है, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ योर यूरिन, सलाइवा वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी बॉडी फ्लूइड्स का पीएच है वो आपको याद ही होना चाहिए। टीएस का पीएच कितना होता है 6.5 टू 7.6, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन कौन सा जीपैट में पूछा है कौन सा नहीं, बट यू शुड नो द पीएच ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी फ्लूइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैंने बोला है कि ब्लड आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन वगैरह, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं, आउट ऑफ दैट अल्बुमिन ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। बाकी जो प्रोटीन होते हैं जैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो प्लाज्मा में आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ओके। सो एज द नेम इंडिकेट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सो दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आपका ब्लड अगर आपका कट हो गया कहाँ पे, या फिर आपका कट हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगा, सो ब्लड लॉस हो जाएगा। एक या 2 मिनट में क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है 3 to 5 मिनट, 3 से मिनट लेके 5 मिनट तक आपका ब्लीडिंग टाइम होता है। उसके अंदर ही ब्लड क्लॉट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका ब्लड लॉस होगा। एंड if you got a more blood loss, that is known as a, that will result in the your hypovolemic shock। आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, सो दैट विल रिजल्ट इन द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सो ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था जीपैट में कि व्हाट इज मीन बाय हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय डिहाइड्रेशन, और excessive loss of water and electrolytes by dehydration, diarrhea, vomiting, और excessive blood loss, so that can result in the hypovolemic shock। कि आपका ब्लड का जो नॉर्मल वैल्यू होता है आपके बॉडी में 5.6 लीटर, ठीक है, तो उससे अगर कम होगा तो दैट इज नोन एज हाइपोवोलेमिया। अगर उससे ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरवोलेमिया। सो हाइपोवोलेमिक शॉक मीन्स अगर आपके बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो गया, सो मोर लेस देन नॉर्मल, दैट विल रिजल्ट इन द हाइपोवोलेमिक शॉक। पर्टिकुलरली ब्लड का अगर बोलेंगे तो उसको हिमोरेजिक बोलते हैं। अगर ब्लड लॉस हो गया और उसकी वजह से आपका डेथ हो गई तो उसको बोलेंगे हिमोरेजिक शॉक। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब ब्लड सेल लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ आपका क्या हुआ है, ब्लड में का जो वाटर लॉस हुआ है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसको बोलेंगे हाइपोवोलेमिक। सिर्फ ब्लड में का वाटर लॉस हो गया है, ब्लड में का वाटर एंड वाटर का जो ब्लड में का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह, बाइकार्बोनेट। So if you lost the water and electrolyte of your blood, if you get, if you lost, if there is a loss, gastric loss, so for example in case of अगर आपको continuous vomiting हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपके बॉडी फ्लूइड्स का लॉस होगा। अगर आपको कंटिन्यूस डायरिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड्स लॉस होंगे। देयर इज अ डिक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड्स और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, सो दैट इज नोन एज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। वी विल सी इट अगेन, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स वगैरह वो अलग एक लेक्चर में देखेंगे। डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर नंबर मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन और नेम दिया है। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी जीपैट में, और बाकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। फैक्टर नंबर 1, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 इज नोन एज फाइब्रिनोजेन। सो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे इसका कोई ट्रिक वगैरह या फिर कोई इसमें क्या, इसमें कोई बेसिक्स नहीं है और इसमें कोई मतलब ये नहीं है उसमें, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर इट। सो फैक्टर नंबर 1 इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, फैक्टर नंबर 2 is known as a prothrombin, factor number 1 is fibrinogen, factor number 2 is a prothrombin, factor number 3 is a tissue factor which is also known as a thromboplastin, factor number 3 thromboplastin or tissue factor। so factor number 4 that is known as a calcium। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जीपैट को। what is factor number 4? one of the following is a factor 4 from the blood clotting factor, वहाँ पे कैल्शियम आना चाहिए।
Factor number 4 is a calcium ion. Factor number 5 is also known as a labile factor or pro-acceleratin or acylglobulin. Acceleratin globulin. Factor number 5. Factor number 7 that is known as a stable factor or pro-converting. इसका नाम क्या है? Stable factor और pro-converting. ठीक है. Now factor number 8. Factor number 8 is known as a anti-hemophilic globin. Anti-hemophilic globin और anti-hemophilic factor. Anti-hemophilic फैक्टर ए. जो हीमोफीलिया होता है, डिसीज होता है हीमोफीलिया, अगर ये फैक्टर एब्सेंस है, ये फैक्टर आपके ब्लड में नहीं है, तो आपको हीमोफीलिया हो जाए. इसके ऊपर भी जीपैट 21 में क्वेश्चन आया था. सो व्हाट इज फैक्टर 8? दैट इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. जीपैट 21 में ये फैक्टर पूछा था आपको. कौन सा? फैक्टर नंबर 8. ठीक है. नाउ फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. ठीक है. तो फैक्टर नंबर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. फैक्टर नंबर 9 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. ओके. सो एब्सेंस ऑफ दीज टू विल रिजल्ट इन द हीमोफिलिया. ठीक है. हीमोफिलिया हमका डिसीज होता है आपका ब्लड का. तो फैक्टर नंबर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. फैक्टर नंबर 9 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी और फैक्टर नंबर 9 इज आल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर. इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, ये दोनों फैक्टर के ऊपर. ठीक है. देन फैक्टर नंबर 10. Factor number 10 is known as a Stewart power factor. Factor number 10 is known as a Stewart power factor. इसके ऊपर जीपैट 2019 में क्वेश्चन आया. So this is very important. ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है. जैसे फैक्टर नंबर 4 के बारे में एक बार पूछा था क्वेश्चन. व्हाट इज फैक्टर नंबर 4? दैट इज कैल्शियम. फैक्टर नंबर 8 के बारे में पूछा है. फैक्टर नंबर 9 के बारे में पूछा है. फैक्टर नंबर 10 के बारे में पूछा है. सो फैक्टर नंबर 10 इज नोन एज अ स्टुअर्ट पावर फैक्टर. फैक्टर 11 इज नोन एज अ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी. ठीक है. मतलब हीमोफिलिया के रिलेटेड कौन से फैक्टर है? फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 11. सो दिस 9 10 sorry 8 9 and 11, these three factors are related with your hemophilia. So these three factors are related with your hemophilia. Okay. Hemophilia के लिए रिगार्डिंग ये फैक्टर्स है आपके. क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर नंबर 8 इज नोन एज हीमोफिलिक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. ठीक है. फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. फैक्टर नंबर 11 इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है. देन फैक्टर नंबर 10 इज नोन एज स्टुअर्ट पावर फैक्टर. इसके बारे में डायरेक्ट जीपैट 19 में क्वेश्चन आ चुका है. इसके बारे में जो है ये जीपैट 21 में क्वेश्चन आ चुका है. अगेन कैल्शियम के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. दिस 4 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम इन द जीपैट. इसके बारे में 4 बार जीपैट में क्वेश्चन पूछा है. ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, बुक में भी है मेरे. ठीक है. तो आपको ये क्लियर करना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज नोन एज फैक्टर नंबर 12. फैक्टर नंबर 12 is known as a Hagman factor. ठीक है. Hagman factor. Then factor number 13. Factor number 13 is known as a Fibrin stability factor. Fibrin stability. Now ये जो 13 factors है, so एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ मैं. फैक्टर नंबर 1 is known as a fibrinogen. फैक्टर नंबर 2 is known as a prothrombin. फैक्टर नंबर 3 is known as a tissue factor और थ्रोम्बोप्लास्टिन. फैक्टर नंबर 4 is known as a calcium और इनऑर्गेनिक कैल्शियम. इसके बारे में जीपैट में क्वेश्चन पूछा है. फैक्टर नंबर 4 इज अ कैल्शियम आयन. फैक्टर नंबर 5 इज अ लेबाइल फैक्टर और प्रो एक्सेलरेटिंग. फैक्टर नंबर 6 इज नथिंग बट द स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग. ठीक है. देन फैक्टर नंबर 8 क्या है आपका? फैक्टर नंबर 8 इट इज नोन एज अ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. फैक्टर नंबर 9 क्या है आपका? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. फैक्टर नंबर 10 क्या है आपका? 10 इज नोन एज स्टुअर्ट पावर फैक्टर. सो फैक्टर नंबर 8 9 10 11 ये इंपॉर्टेंट है. ये इसके हर एक के बारे में क्वेश्चन पूछा है. ये तीनों चारों फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है. देन फैक्टर नंबर 12 इज नोन एज हैगमन फैक्टर. फैक्टर नंबर 13 इज नोन एज फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर. ओके. सो उसके अभी ये जो फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं. सो व्हिच आर द कैल्शियम डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड व्हिच आर द कैल्शियम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स विल सी. सो आउट ऑफ दिस विटामिन के इज essential for the synthesis of factor like factor number 12, factor number 2, factor number 7, factor number 9, factor number 10. ये जीपैट 2018 में क्वेश्चन पूछा था. विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? इसके बारे में जीपैट 2018. सो विटामिन ए डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग. तो बीच में ही डिस्टर्ब मत किया करो.
अभी थोड़ा सा ऐसे डेमो लेक्चर चल रहा है इसलिए मैंने एडमिट कर दिया, अदरवाइज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीपैट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं जीपैट में, नाइपर में, या फिर आपके बाकी एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये फैक्टर आपको बाय हार्ट हो गए सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको समझ में आया तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक चैप्टर फ्रॉम फार्माकोलॉजी। मतलब फार्माकोलॉजी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर थ्री सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट वन इज योर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सेकंड वन इज योर बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अगर आपको फार्माकोलॉजी समझना चाहिए तो आपके तीन सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। कौन से? एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट, सेकंड बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर है तो फार्माकोलॉजी बहुत ही इजी होता है आपको। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बिहाइंड अ पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द ड्रग अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। आपको अगर मालूम है कि ब्लड प्रेशर कम या ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों हो रहा है, क्यों ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है आपका, तो आपको ऑब्वियसली आपको रीजन मालूम है, ऑब्वियसली यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आपको रीजन मालूम है तो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे आप। सो यू हैव टू बी क्लियर रिगार्डिंग द फिजियोलॉजी। सो दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपन, बाकी बाद में। सो फैक्टर नंबर 1 इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, फैक्टर नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 इज टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम, इनऑर्गेनिक कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, इनऑर्गेनिक फैक्टर इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितना है? फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 5 is known as a labile factor or pro-acceleratin or acyclovir. Factor number 7 is known as stable power or pro-convertin. Factor number 8 is known as anti-hemophilic globulin or anti-hemophilic factor A. इसके बारे में क्वेश्चन जीपैट 21 में आ चुका है। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। It is also known as a plasma thromboplastin component. Then it is also known as a anti-hemophilic factor B. ये फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर 10 इज नोन एज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। जीपैट 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन था। फैक्टर नंबर 10 इज नोन एज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 11 इज नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। फैक्टर नंबर 12 इज नोन एज हैगमन फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 इज नोन एज फाइब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर। और ये जो सब फैक्टर है, फैक्टर 13 फैक्टर जो होते हैं, इसमें कि कुछ फैक्टर्स आपको विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अभी देखो ये जो फैक्टर्स जो आपने बोले, व्हाट आर दीज फैक्टर्स? दीज फैक्टर्स आर नथिंग बट द प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। टिश्यू फैक्टर क्या है? प्रोटीन है। सिर्फ कैल्शियम इनऑर्गेनिक होता है, कैल्शियम जो है इनऑर्गेनिक होता है, बाकी सब ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होते हैं। नाउ दीज ऑर्गेनिक प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। उसके सिंथेसिस के लिए प्रोसेस होता है, हर एक लीवर में उसका सिंथेसिस होता है लीवर में। तो कुछ कुछ जो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। उसका सिंथेसिस करने के लिए विटामिन के वो लगता है, कुछ फैक्टर्स के लिए नहीं लगता। सो देर आर फ्यू फैक्टर्स, there are few blood clotting factors which require vitamin K for the synthesis, okay, and there are few other which will not require vitamin K for synthesis, and the synthesis of these factors takes place in the liver. कहाँ पे होता है इनका synthesis? liver में, because liver is a metabolic factor of your body. Now which are these factors? vitamin K is essential for the synthesis of factors. Factor number 2, factor number 7, factor number 9, factor number 10. These are the 4 factors which are vitamin K dependent. इसके बारे में जीपैट 2018 में क्वेश्चन। So identify correct option which correct options of factors which require vitamin K for this. मतलब विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से? विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। 2, 7, 9 याद रखो आप, इसके ऊपर जीपैट 18 में क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, इसके ये तीनों के इंपॉर्टेंट, तीनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो दीज आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, पूरा एक या दो लेक्चर हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट। सो ब्लड क्लॉटिंग, देयर आर टू pathways for blood clotting. First one is a intrinsic pathway, first one is a extrinsic pathway and second one is a intrinsic pathway. दो पाथवे होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। आपको अगर कोई कट लग गया है, उसके बाद कट लगने के बाद क्या होता है, आपका ब्लीडिंग चालू होता है, वहां से ब्लड निकलना चालू होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद 2 3 या 4 मिनट के बाद आपका ब्लड वहां पे जम जाता है। सो ब्लड क्लॉटिंग विल बी देयर।
सो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है 2 to 5 मिनट्स, 2 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड क्लॉट होना ही चाहिए, खून जमा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका ब्लड लॉस होगा और वो आपको हिमोरेजिक शॉक लगेगा, आप मर जाओगे। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस which is a cascade process which is a complex process, it is a cascade of different blood clotting factors। मतलब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जैसे आपको डैमेज या फिर कट हो गया, उसके बाद में केमिकल रिलीज होगा एक जहाँ पे कट हुआ है वहां से, उसके बाद में वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते जाएगा, एक के बाद एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। देयर आर टू पाथवेज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक पाथवे, एंडोथेलियल डैमेज प्लस कोलेजन एक्सपोजर। मान लीजिए कि आपके ब्लड वेसल वो क्या हो गया, कट हो गया, आपने नस काट लिया, आप किसी से प्यार करते हो उसने नहीं बोला आपको, किसी को प्रपोज किया आपने, उसने क्या बोला, नहीं आई एम ऑलरेडी एंगेज, तो वो आपने क्या किया, आपकी नस काट ली, नस काट ली मतलब क्या होगा, देर इज अ कट टू योर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को क्या होगा, आपका कट होगा। नाउ कट जो हुआ है, सो आपका कट होने के बाद क्या होता है, सो योर एंडोथेलियम, इनर लेयर ऑफ योर ब्लड वेसल, एंडोथेलियम विल बी एक्सपोज्ड। ओके, एंडोथेलियल डैमेज विल बी देयर, आपका एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एंडोथेलियम क्या है, स्मूथ होता है, स्मूथ एकदम, आपने कट किया तो वो आपके क्या होगा, डैमेज होगा। सो एंडोथेलियम में कोलेजन नाम का एक आपका प्रोटीन होता है, कोलेजन। सो दैट कोलेजन विल बी एक्सपोज्ड एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर नोन एज कैलिकैरिन, काइनोजन। ओके, सो वो सब रिलीज होगा वहां पे। सो दिस रिलीज ऑफ these chemicals that is known as a कैलिकैरिन and this काइनोजन, so that will activate your फैक्टर नंबर 12। अभी ये बोलेंगे फैक्टर नंबर 12 कहाँ से आया, ये एक्चुअली ब्लड में होता है, देखिए अपन ने देखा है ब्लड के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये सब ब्लड में होते हैं फैक्टर्स। अभी ये फैक्टर नंबर 12 जो है, सो 12 दैट इज इनएक्टिव फैक्टर, नाउ फैक्टर नंबर 12 विल बी एक्टिवेटेड इनटू फैक्टर नंबर 12 ए। जिस भी फैक्टर नंबर के आगे ए लगा, मान लीजिए ये देखो यहाँ पे कितना है, फैक्टर नंबर 11 है, उसका क्या होता है, फैक्टर नंबर 11 ए। सो जो भी ए मतलब क्या है, सो इट इज एक्टिव, सो दिस इज इनएक्टिव। सो or internal vessel damage will result in the release of kallikrein that will activate factor number 12 present in the blood into factor number 12a। Okay, then factor number 12a will activate factor number 11 into 11a, then factor number 11a along with the calcium will activate factor number 9 into factor number 9a which is active form. Then factor number 9a with calcium and factor number 8 will activate inactive factor 10 into active factor 10a. Now 10a is nothing but the prothrombin activator, prothrombin activator। अभी ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करेगा एक्टिवेशन किसका, प्रोथ्रोम्बिन का। सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विल एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म, ये भी ब्लड में होता है। सो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। नाउ दिस थ्रोम्बिन will act upon inactive fibrinogen A which is also present in the blood and it will be converted into active fibrinogen A. Thrombin will convert fibrinogen A inactive to the active। Okay, then fibrinogen A will get polymerized and loss of strands। ठीक है, फाइब्रिनोजन का एक फाइब्रिन का थ्रेड बनेगा, थ्रेड्स बनेंगे, इसके थ्रेड बन के वहां पे क्लॉटिंग होगा। ठीक है, सो लॉस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रिन, देन डिपेंडिंग अपॉन द कैल्शियम एंड फैक्टर 8, so it will get clotted, fibrin tight blood clot। so this is a intrinsic pathway। ठीक है, ये इंट्रिंसिक पाथवे होगा, ये ऐसे इस तरीके से एक कैस्केड होगा, मल्टीपल टाइम्स एक्टिव इनएक्टिव जो ब्लड का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका एक्टिवेशन होते जाएगा एक के बाद एक, और बाद में आपका ब्लड क्लॉट होगा, दैट इज अ इंट्रिंसिक पाथवे। नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे, नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है कि अगर आपका टिश्यू है, कोई अगर टिश्यू है, टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू को डैमेज हो गया है या फिर टिश्यू आपका रप्चर हो गया है, ठीक है, आपका मसल कट हो गया है, सो वहां पे क्या होगा, सो टिश्यू और मेम्ब्रेन जो होता है आपका, मेम्ब्रेन टिश्यू मतलब सेल या फिर टिश्यू, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है आपका, ठीक है। सो ट्रॉमा टिश्यू डैमेज, ट्रॉमा मतलब डैमेज हो गया, तो टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा और टिश्यू ट्रॉमा और डैमेज टू योर टिश्यू will release a tissue thromboplastin component and that is a released from the phospholipid fraction of your सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड होता है उससे रिलीज होता है वो, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो क्या करेंगे, दैट विल दैट ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड फ्रैक्शन ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन
that will activate factor number 10 into factor number 10A. ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में वो रिलीज हो जाएगा, वो एक्टिवेट अलॉन्ग विद योर फैक्टर नंबर 7 विल एक्टिवेट इनएक्टिव फैक्टर 10 into 10A. उसके बाद 10A कैल्शियम के साथ में क्या करेगा, थ्रोम्बिन कैल्शियम प्लस फैक्टर V मतलब फैक्टर 5, ये क्या करेगा थ्रोम्बिन, ये क्या करेगा एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा. नाउ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विल एक्टिवेट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. उसके बाद में ये थ्रोम्बिन जो है, ठीक है, थ्रोम्बिन जो है बाद में फिर उसका सेम प्रोसेस, दिस इज कॉमन पाथ है, दिस इज नोन एज कॉमन पाथ है. स्टेज 2 से लेके स्टेज 3 जो है वो दैट इज नोन एज कॉमन पाथवे, इट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे, इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक पाथवे. अपन फिर से बाद में देखने वाले हैं व्हेन वी विल सी द ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड. It was just a overview or just introduction to you. Now we'll see different plasma proteins and their molecular weight. कि प्लाज्मा में कितने टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या है और उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं कि सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग लाइन टू लाइन आपको बोलो, वो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज योर कॉलेज इज टेकिंग 4 years to complete your syllabus from first year to last year and I have to complete your syllabus within 1 year. तो मुझे एक साल में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको कॉलेज 4 साल लेता है और आपके कॉलेजेस में हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग अलग होता है, लेकिन मुझे सब एक साल में ही कवर करना है आपका जीपैट के लिए जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अभी ये ब्लड चैप्टर में, और देर इज नो क्लास इंडिया में, ऐसा कोई क्लास नहीं है जीपैट का जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएगा. कि ब्लड का चैप्टर के लिए 3 लेक्चर किसने लिया, अभी तक कोई भी क्लास नहीं. मुझे एग्जांपल दे दो, आपको फ्री में एडमिशन दूंगा. नेम ऑफ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूलर वेट. एम आई ऑडिबल यू क्लियरली? So plasma proteins and their molecular weight. So name of protein and molecular weight and their function. I have summarized it in one table. ये टेबल मैंने बनाया, ये टेबल मेरे बुक में भी है, इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अल्बुमिन. First protein is albumin. Okay, so what is the molecular weight of albumin? That is 65,000 Dalton to 69,000 Dalton. 60,000 या 69,000 मतलब 65 Dalton to 69,000 Dalton तक उसका molecular weight है. And this was question in GPAT 20. आप पेपर उठा के देख लो, GPAT 20 में एक क्वेश्चन पूछा है. What is the molecular weight of albumin? Human albumin. What is molecular weight of human albumin? So it is around 65,000. यहाँ पे वो 65,000 ऑप्शन में था, वही करेक्ट. सो ये रेंज में होता है एक्चुअली 65 to 69,000 डेल्टन. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एल्बुमिन इन योर ब्लड? कि एल्बुमिन का रोल क्या होता है ब्लड में? सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, देन रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द योर ब्लड. जो पीएच होता है ब्लड का 7.4 to 7 जो है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन हेल्प करता है. सो एल्बुमिन आल्सो नोन एज अ मेजर बफर इन द ब्लड. ठीक है, याद रखो, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. देन अगेन रेगुलेशन ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर. ऑन्कोटिक प्रेशर और इट इज आल्सो नोन एज रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. जो भी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू दिस एल्बुमिन. जो प्लाज्मा है आपका, प्लाज्मा का विस्कोसिटी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्बुमिन. सो इट इज आल्सो रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लोबुलिन. माउस के ऊपर ध्यान दो आप. नेक्स्ट वन इज ग्लोबुलिन. So globulin is also again a protein present in the plasma और blood. ठीक है, ब्लड में ही होता है, प्लाज्मा में होता है. उसका मोलिकुलर होता है, मोलिकुलर वेट कितना है? मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लोबुलिन इज 9,000 to 90,000 to 1.5 lakh. उसका मोलिकुलर वेट होता है. ठीक है, तो उसका ग्लोबुलिन जो है उसका फंक्शन क्या है? सो ग्लोबुलिन इट हैज टू पार्ट्स, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स. दो उसके टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन्स होता है, बीटा ग्लोबुलिन्स होता है. So alpha and beta globulins they involve the transportation function. Then gamma globulin जो होता है इसका टाइप, they are involved in the defense. Okay, इसमें globulin का 3 टाइप होता है, alpha globulins, beta globulins and gamma globulins. So alpha and beta globulins they are involved in the transportation function and gamma globulins are the defensive function. Now this albumin globulin जो भी है ये proteins they also serve as a बाइंडिंग साइट फॉर योर ड्रग्स. जो भी एब्सॉर्प्शन होने के बाद ड्रग होते हैं वो ड्रग बाइंड करते हैं प्रोटीन्स को. दे यूज टू बाइंड द एल्बुमिन ग्लोबुलिन्स, देन योर हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो these proteins will also serve as a binding site for your drugs. ओके, देन ग्लोबुलिन के बारे में क्या है? 3 टाइप होते हैं उसके, अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, सो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन. देन ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन मतलब क्या? देखो आपके सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर
डिफरेंट काइंड ऑफ ये होते हैं क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स होते हैं। सो जो जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, जैसे आपका एक्टिव प्रोसेस हो गया, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू अगेन sorry lowest concentration to highest concentration, that is known as a active transport. Okay, जो भी प्रोसेस है आपका पैसिव डिफ्यूजन देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो अपन बाद में देख लेंगे व्हेन वी विल सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फार्माकोलॉजी। एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जैसे आपका एब्सॉर्प्शन हो गया, तो एब्सॉर्प्शन आपका कॉमन चैप्टर है, कितने इसमें आएगा एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी आता है, आपका फार्माकोलॉजी में भी आता है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आता है, आपका बायोफार्मास्यूटिक्स में भी आता है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। So if you talk about the absorption distribution, okay, these two processes are the same in your anatomy physiology, then your pharmacology as well as your biopharmaceutics medicinal chemistry। तो ये सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, सब में अलग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक ही बार पढ़ाऊंगा, सब में वही कॉमन है। ठीक है। नाउ ग्लोबुलिन के तीन पार्ट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। सो गामा ग्लोबुलिन्स आर इन द इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी और दे आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन, so what is molecular weight, 3.4 lakh to 5 lakh Dalton, उसका fibrinogen का molecular weight, and this function of fibrinogen is nothing but the blood clotting। fibrinogen क्या है, fibrinogen क्या होता है, it is a blood clotting factors। okay, it is one of the blood clotting factor, blood clotting। ठीक है। now next one is alpha 1 glycoprotein, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, उसका मोलिकुलर वेट होता है 4000 डेल्टा। इट इज आल्सो नोन एज ऑर्सोम्यूकॉइड, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्सोम्यूकॉइड एंड इट इज इंडिकेटर फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है एक्यूट, तो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ जाएगा, इज नोन एज ऑर्सोम्यूकॉइड। इसका सिनोनिम याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्सोम्यूकॉइड। देन अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लोबुलिन अलग है, अल्फा 1 ग्लोबुलिन अलग है। अल्फा 1 एसिड ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज ऑर्सोम्यूकॉइड। अल्फा 1 ग्लोबुलिन जो होता है उसका मोलिकुलर वेट होता है 59000। इसका रोल अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया है, बट इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फ्रॉम। अल्फा 2 ग्लोबुलिन उसका मोलिकुलर वेट होता है 13400 डेल्टन। इट इज आल्सो नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन, इंपॉर्टेंट है, इट इज आल्सो नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन। ओके, then there is a one hormone known as a one protein known as a transferrin। transferrin नाम का एक प्रोटीन होता है that are involved in the transfer of iron, transfer of, तो transferrin जो hemoglobin molecule होता है उसमें प्रोटीन होता है transferrin। so peroxidase enzyme responsible for the incorporation of iron into transferrin। तो ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है नॉलेज के लिए। peroxidase enzyme responsible for the incorporation of iron into, तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन, याद रखो। नाउ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन जो होता है मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या होता है 2 लाख सॉरी 20 lakhs to 34 lakhs डेल्टा होता है। तो इसमें लिपोप्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो अपन बाद में देख लेंगे व्हेन वी विल सी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। इसमें तीन टाइप के होते हैं लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स विद लिपिड एंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन इज नोन एज लिपोप्रोटीन। ठीक है। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड अगर लो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया तो आपका हार्ट अटैक का चांस ज्यादा होता है। सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज एसोसिएटेड विद द आर्थरियोस्क्लेरोसिस, आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इट इज आल्सो नोन एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। याद रखो, ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं, जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, इंक्रीज लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द arteriosclerosis, that is nothing but the increased level of low density lipoprotein, वो ज्यादा आपको हार्म करेगा, that is a bad cholesterol। then hemoglobin का molecular weight कितना होता है 64500 डेल्टन। and what is the role of hemoglobin, oxygen transfer to carry oxygen carrying capacity जो होता है that is because of the hemoglobin। so these are the different plasma proteins and their molecular weight which is very important। इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, अल्बुमिन के बारे में क्वेश्चन आता है,
इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ग्लोबुलिन के बनाए गामा ग्लोबुलिन वगैरह। बाद में सिनोनिम जो होता है, फॉर एग्जांपल अल्फा टू ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट मेरे बुक में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, different types of anemia. Anemia means what? Anemia means if there is a decreased hemoglobin level of, ठीक है, आपके बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए आपके बॉडी में, अगर मेल्स है आप, मतलब ह्यूमंस में, मेल्स में हीमोग्लोबिन कितना होना है, 12 टू 15, 12 टू 15, 12 से लेकर 15 तक आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर उतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, आपके बॉडी में पर लीटर, ठीक है, 12 से लेकर 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उससे अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको बोलेंगे अपन एनीमिया, अगर ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया वेरा। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, so decrease in the level of hemoglobin than normal, known as anemia. So first one is a, there are different kinds of anemia like megaloblastic anemia, pernicious anemia, aplastic anemia, hemolytic anemia, congenital hemolytic anemia, sickle cell anemia, thalassemia, polycythemia, ठीक है। ये एक्चुअली दीज आर द डिसीज ऑफ ब्लड, ठीक है, अपन ने ब्लड में के बारे में देखा है। नाउ डिसीज ऑफ ब्लड, सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज द नेम इंडिकेट, मेगा मीन्स बड़ा, सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें आरबीसी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो दिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। Now in this megaloblastic anemia there is an abnormal increase in the size of RBC। जो RBC का साइज जो होता है आपका, आपको बोला है कितना साइज होता है माइक्रोन में, 7.5। अगर उसका साइज बढ़ता है दैट इज ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी, दैट इज विटामिन B12 डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, नोन एज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज अ pernicious anemia, second one is a pernicious anemia, सेकंड वन इज पर्निशियस एनीमिया। ये एनीमिया के टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बोलूंगा। फर्स्ट वन वाज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, आपका आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा देन नॉर्मल, वो दैट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ योर विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ योर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होता है उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट वन इज अ पर्निशियस एनीमिया, नेक्स्ट वन इज अ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, ठीक है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी दैट इज अ पर्निशियस एनीमिया, याद रखो। विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो गया तो उसको पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, पर्निशियस विटामिन B12 का डिफिशियंसी। नाउ नेक्स्ट वन इज ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ए प्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बोन मैरो फेल्योर या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट किया अपनी बॉडी में, तो आपको ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। या फिर ए प्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ द बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन। आपका ब्लड सेल कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। आपका जो बोन होता है, लॉन्ग बोन्स, जैसे मैंने बोला है फीमर, आपका फीमर होगा, ह्यूमरस होगा, फीमर लॉन्ग बोन जो है ह्यूमरस फीमर, देन आपका जो पेल्विक बोन्स है, फ्लैट बोन्स, सो इन दैट there is a hollow cavity inside the bone that is known as the bone marrow and formation of blood cell takes place in the bone marrow। now जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, आप याद रखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, सो एंटी कैंसर ड्रग विल डिस्ट्रॉय और विल सप्रेस योर बोन मैरो। सो एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं वो बोन मैरो को सप्रेस करते हैं, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ए प्लास्टिक एनीमिया। याद रखो भाई, यहाँ पे ही आपको पूरा फार्माकोलॉजी में बोलूंगा, ठीक है। सो ए प्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द बोन मैरो सप्रेशन, ओके, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट and most of the anti-cancer drugs, and there are few antibiotics also, they used to suppress the bone marrow। bone marrow suppression होता है, जैसे क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है, वो भी आपका बोन मैरो को सप्रेस करेगा। बोन मैरो को सप्रेस मतलब उसका फंक्शनिंग कम कर देगा या फिर उसको फंक्शनिंग बंद कर देगा, दैट इज बोन मैरो सप्रेशन। क्लोरामफेनिकोल, देन मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स, दे विल कॉज aplastic anemia। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स लो प्लेटलेट काउंट, अगर आपका प्लेटलेट काउंट जो है कम हो गया, प्लेटलेट काउंट अगर आपका कम हो गया, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ योर डेंगू इन्फेक्शन, अगर आपको डेंगू का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स कम होते हैं, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो लो लेवल, लो प्लेटलेट काउंट then normal, known as a thrombocytopenia, then low leukocyte then normal, known as a leukopenia। cytotoxic drug like
Cytotoxic drug means anti-cancer drug. Cytotoxic drug means anti-cancer drugs and anti-inflammatory drugs. जो anti-inflammatory and anti-cancer drugs, and there are certain antibiotics also. There are certain anti-convulsant drug, for example फिनिडोइन, एंटी कैंसर ड्रग, पूरे एंटी कैंसर ड्रग जो भी है, जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है सब आपको एप्लास्टिक एनीमिया करेंगे एज ए एडवर्स इफेक्ट। देन देयर आर सर्टेन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लेंगे एनाल्जिन, एनाल्जिन नाम का जो ड्रग है वो करेगा आपको एप्लास्टिक एनीमिया। क्लोरामफेनिकोल जो आपका एंटीबायोटिक है दैट विल आल्सो कॉज एप्लास्टिक एनीमिया। सो याद रखो एप्लास्टिक एनीमिया इज नथिंग बट द ड्यू टू सप्रेशन ऑफ योर रेड बोन मैरो cells, suppression of bone marrow cells will leads to aplastic anemia। मतलब इसमें क्या कि इसमें आपका बोन मैरो में जो ब्लड सेल होगा वो तो बनेगा या फिर फॉल्टी बनेगा, उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई या फिर जो भी सेल बनेगा वो फंक्शन उसका लॉस कर देगा, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। नाउ नेक्स्ट वन इज नोन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन हो गया या फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉइंग ऑफ आरबीसी परमानेंटली बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिव एबनॉर्मल इम्यूनिटी फंक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। अभी देखो मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रक्शन क्यों होता है। सो मान लीजिए आप एक लेडीज है और प्रेग्नेंट हो आप, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। अगर बाय चांस आपके बेबी का जो आपके पेट में बच्चा है उसका बी निगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, पहली बार आपको बच्चा हो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम क्योंकि आपका तो आर एच पॉजिटिव ब्लड है, उसका आर एच निगेटिव है, ठीक है। मान लीजिए आपका ब्लड आर एच पॉजिटिव बी पॉजिटिव और बच्चे का बी निगेटिव है, तो पहली बार अगर आपके पेट में बच्चा है तो बच्चे का बी निगेटिव है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएगी और वो आपके बॉडी में रहेगी। पहले बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर दूसरा बच्चा है आप और उसका भी बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके बी निगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज रहते हैं अगेंस्ट द बी निगेटिव, तो वहां पे क्या होगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा और हीमोलाइसिस होगा, तो वो जो सेकंड बच्चा है वो मर भी सकता है, दैट इज नोन एज हीमोलाइसिस और ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। So breakdown of RBC due to immune triggered immunity or due to other reason that will lead to hemolytic anemia. Next one is a congenital hemolytic anemia. Congenital hemolytic, तो congenital मतलब genetic origin, congenital hemolytic anemia मतलब genetic origin due to genetic abnormality leads to synthesis of abnormal hemoglobin. Due to genetic abnormality it leads to synthesis of abnormal hemoglobin. abnormal hemoglobin बनेगा आपको and increased red cell permeability to and reducing the oxygen carrying capacity and lifespan, that is known as a congenital hemolytic anemia। आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, कि उसमें जो आरबीसी बनता है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो फॉल्टी बनता है, ओके, वो फॉल्टी बनता है और आरबीसी का लाइफ स्पेन भी कम होता है, दैट इज हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि सिकल सेल मतलब जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है बायोकन्वेक्स शेप, तो वो नॉर्मल आरबीसी का होता है। सिकलिंग सेल जो होता है वो एबनॉर्मल शेप ऑफ योर आरबीसी। सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेकिंग द आरबीसी सिकल शेप। तो यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है या कम होता है उसके वजह से, और वो आपका जो आरबीसी का शेप है वो चेंज होता है, दैट इज नोन एज सिकल सेल। दिखा था मैं बात। नेक्स्ट वन इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब क्या, इनहेरिटेड कंडीशन कॉमन इन द मेडिटेरियन कंट्रीज cause abnormal hemoglobin production which in turn reduces the erythropoiesis and stimulate hemolysis। thalassemia मतलब क्या, it is also a disease of your blood in which your genetic problem, जेनेटिक इनहेरिटेड जो जीन्स होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। ड्यू टू दिस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन देयर इज रिडक्शन इन द इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का सेल जो बनता है उसमें कमी आ जाएगी, तो आरबीसी सेल बनेगा नहीं इसमें एंड हीमोलाइसिस को स्टिमुलेट। पॉलीसाइथेमिया मींस एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट। अगर आपके ब्लड में आरबीसी काउंट जाता है तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। ल्यूकोपेनिया किसको बोलेंगे, टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट काउंट इज लेस। अगर ल्यूकोसाइट काउंट अगर लेस मतलब कम हो गया तो उसको बोलेंगे अपन ल्यूकोपेनिया, ठीक है। न्यूट्रोपेनिया और ग्रैनुलोपेनिया किसको बोलेंगे,
एबनॉर्मल अट्रैक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट्स, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो उसका अट्रैक्शन होता है, मतलब आपके कोई इन्फेक्शन भी नहीं है फिर भी आपके unnecessary increase in the neutrophils, unnecessary increase in the level of neutrophils or granulocytes known as a neutropenia or granulocytopenia. This is also due to few drugs. कुछ ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूट्रोपेनिया. देन ल्यूकोपेनिया, मैलिग्नेंट ल्यूकेमिया सॉरी ल्यूकेमिया मतलब क्या, इट इज अ काइंड ऑफ कैंसर. Leukemia is nothing but a type of cancer. So malignant proliferation of leukocytes, abnormal synthesis of leukocytes, abnormal uncontrolled synthesis of leukocyte. ठीक है, ल्यूकोसाइट बहुत ज्यादा बनेंगे आपके बॉडी में, कैंसरस सेल बहुत है. सो कैंसर ऑफ ब्लड इज नोन एज अ ल्यूकोपेनिया, सॉरी ल्यूकोमिया. leukemia is the cancer of blood. So abnormal proliferation of leukocyte in the blood, that is a blood cancer. So it was all about your today's session. इसमें किसी को कोई